कौन कौन नहीं आता है क्लास में, आई विल सेंड द रिमाइंडर टू द पेरेंट्स इफ यू डोंट अटेंड द क्लास। अब चॉइस नहीं है कि हम अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, मर्जी नहीं है, आपको अटेंड करना है, क्योंकि पढ़ कैसे पाएंगे, अटेंड नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो दैट्स व्हाट इज नेसेसरी दैट यू शुड अटेंड द क्लासेस, है ना। कई बार हो सकता है प्रॉब्लम हो, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे जानबूझ के क्लास अटेंड नहीं करते हैं, दैट इज नॉट राइट। 12th में देखो ज्यादातर उनकी अटेंडेंस 100% चल रही है, 98%, 100% स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग देयर क्लास। हमारे यहाँ तो उतना आते नहीं है, 2-3 बच्चे तो एब्सेंट हो जाते हैं। That should not happen. So let me share the screen. Present now. Sorry, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। The entire screen. Share. Share entire screen. The screen is visible. To share. To share. अभी शेयरिंग नहीं हो रहा ना, सैराम एंटायर स्क्रीन शेयर, ठीक है। जी अभी कुछ दिख रहा है कि स्क्रीन पे आपको? यस सर। क्या दिख रहा है सर? सिर्फ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप दिख रहा, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा मुझे को। ठीक है, दिस विजिबल, ये दिख रहा है कि स्टाफिंग आपको? यस सर। Okay, so let us discuss this. We have already discussed this part of introduction, है ना। Staffing is the process of filling and keeping filled the positions in the organization, है ना। It's the process of putting the right person for the right job. Staffing is the process of filling the job positions in the organization and keep them filled, or it is the process of putting the right person on the right job. This also we have discussed why staffing is important. This point we discuss, it helps in discovery and obtaining competent personnel, improve the performance by putting right person on the right job. It ensures the continuous survival and growth by putting the new managers, new people, helps to ensure optimum utilization of human resource by avoiding the situation of overstaffing and understaffing, and it improves job satisfaction of the employees by their assessment. When they come to know about their performance, they are satisfied. This also we discussed staffing as a part of human resource management. मैंने discuss किया था, आपको याद हो तो? Human resource management is a broader concept that includes all the activities related to employees of the organization, human resource, and staffing is only one part of the human resource, है ना। तो human resource include all these activities. ये list दिया है, this is included in the human resource. Recruitment, that means search for qualified people, analyzing job, collecting information about jobs to prepare job description, developing compensation and incentive plan, training and development of employees for efficient performance, है ना। इतना तो हम पढ़ेंगे स्टाफिंग में भी, ये वाला पार्ट हमारे यहाँ सिलेबस में। ये बाकी का जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग में नहीं आता, तो इस पर हमारे सिलेबस में नहीं है। मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, providing for social security and welfare of employees, defending the company in lawsuit and avoiding legal complications. These all are the part of the human resource management, and staffing is only one part of the human resource management. So we can say that human resource management is a broader concept and staffing is a part of the human resource management. This also we have discussed that how did this develop. Initially इसका नाम दिया था, क्या था आपको?
लेबर वेलफेयर ऑफिसर, सबसे पहले जो रूल था वो था लेबर वेलफेयर ऑफिसर, फिर आया पर्सनल ऑफिसर, फिर आ गया आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ओके, सो दिस इज द डेवलपमेंट वी हैव डिस्कस, आप इसको पढ़ लेना। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टाफिंग प्रोसेस, है ना। वैसे हम पढ़ चुके हैं, मुझे याद है पहले, बट यू रिवाइज दिस। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्टाफिंग प्रोसेस। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आर देयर बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट स्टेप, so let us read this. As you are now aware, the prime concern of the staffing function in the management process is the timely fulfillment of manpower requirement within the organization. So the main purpose of staffing is to fill the job positions in the organization. That is the main objective of staffing, है ना. So no vacancy is vacant, no post is vacant, and we have sufficient manpower, so the activities of the organization can continue smoothly. These requirements may arise. This is the question you can frame. In which conditions do we need staffing? Staffing की जरूरत कब कब पड़ती है या क्यों पड़ती है? Why do we need staffing? Or in which conditions there are vacancies in the organization? है ना? So we have already discussed. I said that first reason that we need staffing is the new organization. If a new company is starting its business or its activities, all the positions are vacant, so they need to fill all the vacancies. No? So first condition in which we need staffing is the starting a new business or new organization. Second reason is expanding of the business. If we expand the size of existing business, it means we need to create more job positions. That means we have to fill the job positions, extended job positions, and we need staffing. So that is the second reason. That is the extension of the organization or expanding the existing organization. That means we create more job positions because size has been increased, and these increased job positions are to be filled. That is the second reason. So we have two general reasons. Are you understanding? Sairam? Sir, first reason. New organization, है ना. In a new organization, all the posts are vacant. एक नया स्कूल बनाया किसी ने तो सारी पोस्ट वैकेंट है, तो सारी पोस्ट बनना है. एक नई कंपनी बनाई तो ऑल पोस्ट आर वैकेंट, है ना. Then they need staffing. Clear है? Sairam? Yes, sir. Second condition, expansion or extension of organization. आपने साइज बड़ा कर दिया, सिंगल सेक्शन स्कूल तो डबल सेक्शन कर दिया उसको, तो क्या मतलब हुआ इसका? सहीराम, डबल सेक्शन कर दिया तो एक्सपेंशन हो गया, तो आपको ज्यादा टीचर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? Yes, sir. Then we will need staffing, है ना. या कंपनी का एक प्लांट था, एक और प्लांट लगा दिया उसने, क्या होगा उससे? More number of persons will be required, means staffing will be needed, है ना. So these two are very genuine reasons. A new business as well as expansion of the existing business. उसके अलावा कब कब जरूरत पड़ती है? Very important, see, है ना. So one or the existing one, or they may arise as a matter of the need for replacing those who quit. Quit means leave. So third condition, employees leaving the organization. Some employees may leave the organization because of any reason. अगर कोई छोड़ के चला जाता तो उसकी जगह खाली हो गई, that is to be filled. That's why we need staffing, है ना. So the third condition is replacing the persons who has left the organization. Now filling the positions which have become vacant because some of the employees has left the organization, quit. Fourth reason is retirement, है ना, और डेथ. किसी का रिटायरमेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई एम्प्लॉय की इन सर्विस, तो दैट पोस्ट इज वैकेंट एंड वी हैव टू फिल दैट. दैट इज द फोर्थ रीजन और फिफ्थ रीजन, व्हाटएवर इट इज, रिटायरमेंट एंड डेथ, है ना. ट्रांसफर्ड और प्रमोटेड, है ना, और फायर्ड. ट्रांसफर और प्रमोशन में तो जरूरी नहीं है कि जरूरत पड़ेगी स्टाफिंग की, लेकिन फायर में जरूरत पड़ती है. फायर मींस रिमूव, किसी को हमने हटा दिया जॉब से, पहले आया था क्विट किया, किसी ने खुद ने छोड़ दिया. और फायर मींस गोली नहीं मारना. फायर का मतलब होता है कि he has been removed from the job, है ना, fired from the job. In that condition also vacancies are created and we need to use staffing process. So in these conditions we need staffing, है ना. New organization, number 2 extension of the organization, number 3 some employees leaving the organization, fourth one some person may retire or may die, and fifth condition is some people may be removed from the job or terminated from the jobs. In all these conditions we need to fill the job vacancies. Clear?
साई राम, साई राम। Yes, sir. Now see, very important proverb is given here. अच्छा, आपने सी तो देखा ना, वो समुद्र देखा ना, समुद्र। आप समुद्र में बोट में क्या है, बोट में बैठे हैं, समुद्र के बीच में है और प्यास लगी है बहुत जोर से, आपको पानी की बोतल नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे? समुद्र के बीचों बीच नाव में और पानी की बोतल नहीं है, तो क्या करेंगे? पानी तो है, पानी नहीं पियेंगे। पानी पी लेंगे ना, नीचे चारों तरफ तो पानी है, आपको पानी पानी है, तो इतना पानी है, उसकी क्या जरूरत है बोतल की? सर सॉल्टी वाटर है समुद्र में, उसको पी नहीं सकते है ना। नहीं पी सकते, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। हाँ, I did not drink evil. So same thing is about the jobs. देखा जाए तो हर तरफ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। Plenty of people are searching for jobs. Thousands of people are searching for the jobs. लेकिन जब हम ढूंढते हैं तो हमको एक बंदा नहीं मिलता जो सुटेबल हो हमारे काम के लिए, है ना। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि देखो क्या कहता है, in any case need for right person for the right job hardly needs an overemphasis, but just as the phrase water water everywhere and not a drop to drink, ऐसी कंडीशन है। बहुत सारे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उनमें से एक बंदा नहीं है जो ठीक लगे हमारे काम के लिए। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक amplifies the fact that despite 2/3 of the earth being water, drinkable water is scarce commodity. So may also be said of finding the right person for the right job. This is similarly difficult task, as it is very difficult to have drinking water out of lot of water. So though thousands of people are searching for the jobs, but out of these 1,000 person, it is very difficult to find out the right person for the right job, and that is possible only because of the systematic process of staffing. So if we want to find out right person for the right job, we need systematic staffing process, है ना। So it is important to appreciate staffing as a process that starts from, अब तो एक पॉइंट आ गया इसके कहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो ये पढ़ लेते हैं, आपके काम का वैसे भी। Starting from understanding the manpower requirement within the organization, identifying the potential source from where it can be met, either from within the organization or from outside the organization. तो पहला पता लगाना है कितने लोगों की जरूरत है, मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा कहाँ से उसको पूरा करेंगे, इंटरनल सोर्स से और एक्सटर्नल सोर्स से। विदिन द ऑर्गेनाइजेशन मींस इंटरनल सोर्स, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मींस एक्सटर्नल सोर्स, है ना। Given that the right person is here, there is need to market the job. Market the job means giving the advertisement. जो हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, that is the marketing of the job, है ना। जैसे आज किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इतनी प्राइस है, इसके फीचर्स है, इसकी क्वालिटीज है। Similarly, we do the marketing of the job. तो जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, that is the marketing of the job. So people see what is the salary associated with job, what are the facilities, what is the status, that is the marketing of the job. And the organization to the people. तो लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, दो चीजें देखते हैं, किसको पोस्ट कौन सी है और ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। समटाइम पोस्ट में भी गुड बट ऑर्गेनाइजेशन में नॉट बी गुड, पीपल डोंट लाइक टू गो इन दैट। सो बोथ आर बीइंग मार्केटेड, जॉब पोजीशन एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। जो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनमें लोग जाना चाहते हैं, है ना, और जो लेस रेपुटेड है उनमें लोग नहीं जाना चाहते। Even in situations where a single job vacancy might attract a few hundreds of the applicants. तो एक सिंगल वैकेंसी के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस। देयर इज ए चैलेंज ऑफ सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अब सबके पास सेम क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला उसमें लिखा कि क्वालिफिकेशन इज बीएससी मैथमेटिक्स, तो ऑल दोज हु विल अप्लाई दे विल ऑल आर बीएससी मैथमेटिक्स, बट आउट ऑफ देम हु इज द बेस्ट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू सिलेक्ट। फ्रेशली अपॉइंटेड पर्संस माइट नीड ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग। जो न्यू रिक्रूट्स हैं, एकदम बिल्कुल फ्रेश टैलेंट है, वो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, उनको एक्सपीरियंस नहीं है with the way the things are done in the organization, and in case they have been selected only on the basis of academic qualifications, aptitude for learning, they might need training in specific skill as well, है ना। तो ये तो सारा उसका हो गया। अब हम आते हैं सीधा स्टाफिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, है ना। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आपके पास कितनी प्रोसेस आ गई देखो, एक तो आया प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा आया था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, है ना। अब इस चैप्टर में दो प्रोसेस है हमारे पास, एक तो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और दूसरा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, है ना। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस,
that is staffing process. First step in the process of staffing is the estimating the manpower requirement. Estimating manpower requirement means deciding or determining number and type of persons to be recruited. Are you understanding? Estimating manpower requirement means determining the number and type of persons to be selected or to be recruited. That is called estimating manpower requirement. हमको कितने लोगों की जरूरत है और किस काम के लिए जरूरत है. That is called determining the number and type of persons to be recruited or to be selected. That is called estimating the manpower requirement. Sairam. So staffing process begins with the finding out the number and type of persons that are needed by us. हाँ, someone is there. सारे लोग चले गए, कुछ लोग हैं भी क्लास में. Sairam. Yes, sir. So this point you are understanding. This is the beginning point or first point of staffing process. That is determining the number and type of persons. इसकी शॉर्ट कट चाहिए. अभी लिखो. Determining the number and type of persons. Okay. So what to do? For this we use two tools. One is called workload analysis and second is workforce analysis. पहले समझ लो फिर मैं बाद में इसको पढ़ दूंगा आपके लिए. Sairam. So what I said, estimating manpower requirements means that determining the number and type of persons to be selected or to be recruited. Is it clear? हाँ भाई, बोलो कुछ. एक बार और बता दीजिए सर. It is the process of determining the number and type of persons to be recruited. Estimating manpower requirement is the process of determining the number and type of persons to be recruited. कितना हो गया क्या आपका? Yes, sir. अब अगला पैराग्राफ में लिखो. Number and type of persons needed are determined. Number and workforce analysis. Workload analysis and workforce analysis. अब लिखो workload analysis. Workload analysis reveals the number and type of persons. Workload analysis reveals the total number and type of persons. Total number and type of persons. Total number and type of persons needed. Total number and type of persons needed in an organization. Total number and type of persons needed in an organization to perform various jobs. So workload analysis reveals the total number and type of persons needed to
परफॉर्म वेरियस जॉब्स, ठीक है। तो इससे क्या मालूम चल गया वर्कलोड एनालिसिस से कि कितने लोगों की जरूरत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग सही राम? सो वर्कलोड एनालिसिस गिव द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि सारे काम करने के लिए इतने लोगों की जरूरत है। इस टाइप के क्लर्क इतने चाहिए, मैनेजर इतने चाहिए, है ना, प्रोडक्शन मैनेजर इतना चाहिए, फाइनेंस में इतने चाहिए। दैट ऑल रिक्वायरमेंट वी कैन कैलकुलेट बाय एनालाइजिंग वर्कलोड एनालिसिस, ठीक है। दूसरा लिखिए वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस रिवील्स और gives the information, reveals or gives the information workforce analysis reveals or gives the information about the number and type of persons, number and type of persons already available in the organization. Workforce analysis reveals the number and type of persons already available in the organization. It clear, Sairam? Arsi, what we are trying to understand? Arsi, Sairam, Sir, Hershey is not present in the class. Arsi not. Manvi बताओ, Manvi, Yes, sir. what we are trying to understand? Sir, workload analysis and workforce analysis. Main point है हमारा manpower requirement, है ना? Yes, sir. How to determine the number of persons we needed in the organization. तो मतलब क्या है, जैसे अपन स्टेट फॉरवर्ड बात करें तो हमको कितने लोगों की जरूरत है पता लगाना है। एक पता लगाना ना कि हमारी कंपनी में कितने लोगों की जरूरत है, तभी तो रिक्रूटमेंट करेंगे। आप कैसे जाएंगे, कितने लोग को सिलेक्ट करेंगे, किसको? तो दैट वी शुड नो, है ना। तो फर्स्ट थिंग वी शुड नो हाउ मेनी पीपल, है ना, फॉर विच पोजीशंस वी नीड, टाइप एंड पर्संस, है ना, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्संस, है ना। अब उसके लिए कैसे पता लगाएंगे हम लोग? अगर नया ऑर्गेनाइजेशन है, इफ इट्स ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इट्स वेरी सिंपल, जितनी पोजीशन है वो सारी वैकेंट है, तो हमारे लिए पता लगाना आसान है कि इतनी पोस्ट है, इतनी वैकेंसी है, सारी की सारी वैकेंट है। बट इफ इट्स ए रनिंग बिजनेस, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो उसको एनालिसिस करने पड़ेंगे। एक तो वर्कलोड एनालिसिस, कि हमारी इस पूरी कंपनी को चलाने के लिए कितने लोग की जरूरत है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्संस नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने एनालिसिस किया तो हमको मालूम चला कि हमको 100 लोगों की जरूरत है ना, टोटल नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू वर्कलोड एनालिसिस दैट इज 100। यानी इस वर्कलोड को संभालने के लिए, इस काम को संभालने के लिए हमको 100 लोगों की जरूरत है। अब फिर हमने किया वर्कफोर्स एनालिसिस, उससे क्या मालूम चला कि हाउ मेनी पीपल डू वी ऑलरेडी हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। आउट ऑफ दिस 100 हमको मालूम चला कि हमारे पास कितने लोग ऑलरेडी हैं, तो हमको मालूम चला कि हमारे पास 80 पीपल तो ऑलरेडी हमारे पास है, और हमको चाहिए कितने? सही राम, हाउ मेनी? Yes, sir. तो हमको 100 चाहिए और 20 तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमारी रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या रह गई? कितने लोग का रिक्रूटमेंट करना है हमको? सही राम, प्लीज स्पीक। हाउ मेनी पर्सन्स आर टू बी रिक्रूटेड? 20। वेरी गुड, बहुत सिंपल काम है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। हमारा टोटल वर्कलोड एनालिसिस दिखा रहा है कि हमको कितने लोग की जरूरत है, 100 की, और वर्कफोर्स एनालिसिस से हमको मालूम चल गया कि हमारे पास ऑलरेडी 80 लोग तो हैं ही, तो नेट रिक्वायरमेंट कितनी रह गई हमारी? 20 की, ठीक है। तो जब हम एडवर्टाइजमेंट देंगे तो कितने लोग का देंगे? 100 का देंगे, 80 का देंगे या 20 का देंगे? एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे रिक्रूटमेंट का लगता है। हाँ जी, 20 सर। 20 का, 30 का क्यों देंगे? 100 की रिक्वायरमेंट है, 80 अगर हमारे पास, तो कितने का रिक्वायरमेंट देंगे हम लोग? 20 सर। 20 का है ना, 20 का रिक्वायरमेंट हम लोग देंगे। समझ में आ गया आपको? सो द मैन पावर रिक्वायरमेंट डिटरमिन हो गया हमारा कि नहीं हुआ? एस्टिमेट कर लिया कितने लोग की जरूरत है हमको?
समझ में आया आपको? प्रोसेस है, प्रैक्टिकली करना पड़ता है इस तरह। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट is number and type of persons needed. It is determined on the basis of workload analysis and workforce analysis. Workload analysis tells total number and type of persons needed in the organization to perform the various jobs. Workforce analysis tells a total number and type of persons already available in the organization. तो नेट रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू वर्कलोड एनालिसिस माइनस वर्कफोर्स एनालिसिस, है ना। अगर हमारा 100 का वर्कलोड एनालिसिस है और 80 का वर्कफोर्स एनालिसिस, का मतलब क्या है कि हमारे पास 80 ऑलरेडी है, वी नीड टू रिक्रूट ओनली 20। समझ में आ रहा है आपको? अगर सपोज करो 100, हमारा दोनों का नंबर 100 आ गया, वर्कलोड का भी नंबर 100 है और वर्कफोर्स का भी नंबर 100 है, तो कितना रिक्रूटमेंट करना है हमको? साईराम, रिक्रूट ही नहीं करना सर। रिक्रूट नहीं करना, वेरी गुड, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जितने चाहिए उतने लोग हैं। शिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी केवल, हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं फालतू, उनकी जरूरत ही नहीं है वहां पर, तो शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे उनको, बट वी डोंट नीड टू रिक्रूट। समझ रहा है आपको? है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि वर्कलोड तो दिखा रहा है 80 और हमारे पास वर्कफोर्स में दिखा रहा है 100। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, वर्कलोड इज शोइंग 80 एंड वर्कफोर्स इज शोइंग 100, दैट इज व्हाट। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हो सकता है ना। कोई एक सिचुएशन बताओ इसमें ऐसा हो सकता है, किस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि हमको 80 की जरूरत और 100 लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है एग्रीकल्चर। हाँ ठीक है तुम्हारा, लेकिन वो देखो कैसे हो सकता है, पहले सारा काम लोग हाथ से करते थे, मैनुअल वर्क होता था, है ना, तो कंपनी ने बहुत सारे लोग रखे। अब हो सकता है कंप्यूटराइज हो गया कंपनी का काम, तो कंप्यूटराइज हो गया तो क्या होगा, मैन पावर रिक्वायरमेंट कम होगी कि ज्यादा होगी? कम हो गई, लेकिन एम्प्लॉय तो हमारे पास रेगुलर है, तो हमने निकाल नहीं सकते उनको, तो क्या हो गया, हमारा कंपनी ओवर स्टाफिंग में चल रही है। तो अभी तो हमारे पास ऑलरेडी लोग ज्यादा, तो हमको उनको नया रिक्रूटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड टू रिक्रूट, तो स्टाफिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको फिर, है ना। सो दैट इज द सिचुएशन। तो हमारे को स्टाफिंग की जरूरत कब पड़ेगी? जब वर्कलोड एनालिसिस माइनस वर्कफोर्स एनालिसिस होगा तब। इफ बोथ आर इक्वल वी डोंट नीड स्टाफिंग, इफ वर्कफोर्स एनालिसिस इज मोर देन वर्कलोड एनालिसिस देन आल्सो वी डोंट नीड स्टाफिंग। ठीक, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दैट इज डिटरमिनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन्स टू बी रिक्रूटेड। दिस इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू एनालिसिस बताया आपको, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस reveals the total number and type of persons needed in an organization, and workforce analysis reveals the number and type of persons already available in the organization. हो गया सही राम? यस सर। अब अगला जो स्टेप है वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट से पहले क्या करना पड़ेगा आपको? वी हैव टू डिफाइन द जॉब पोजीशंस। देखो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वाला पैराग्राफ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं आपको ये वाला। Operationally understanding the manpower requirement would necessitate workload analysis on the one hand and workforce analysis on the other. Workload analysis would enable an assessment of the number and type of human resources necessary for the performance of various jobs and accomplishment of organizational objectives. जो हमने बात कर ली कि total number of persons and type of persons needed. दूसरा वर्कफोर्स एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल, कितने ऑलरेडी अवेलेबल को मालूम चलेगा वर्कफोर्स से। इन फैक्ट सच एन एक्सरसाइज वुड रिवील वेदर वी आर अंडर स्टाफ, ओवर स्टाफ और ऑप्टिमम टाइप। ये तीन वर्ड यूज किए। अंडर स्टाफ का मतलब क्या हो गया, वर्कलोड ज्यादा है, वर्कफोर्स कम है, तो हमारा अंडर स्टाफ है। ओवर स्टाफ जो मैंने बताया आपको, वर्कलोड में बोलना 80 चाहिए और हमारे पास ऑलरेडी 100 लोग हैं, वर्कफोर्स ज्यादा है तो हमारा ओवर स्टाफ है। और ऑप्टिमली स्टाफ मतलब दोनों सेम नंबर आ रहे हैं, वर्कलोड करा 80 चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 80 है, तो हम ऑप्टिमली स्टाफ हैं। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट नाइदर ओवर स्टाफिंग नॉर अंडर स्टाफिंग इज ए डिजायरेबल सिचुएशन, है ना। इन फैक्ट दिस एक्सरसाइज वुड फॉर्म द बेसिस ऑफ द सब्सिक्वेंट स्टाफिंग एक्शन। A situation of overstaffing somewhere would necessitate employee removal or transfer elsewhere. अगर ज्यादा है तो या तो उनको हटाओ या फिर ट्रांसफर करो, अगर बड़ी कंपनी है तो। A situation of understaffing would necessitate the starting of the recruitment process.
तो हमको जरूरत कब पड़ेगी, अगर हम अंडर स्टाफिंग है तो ही हमको आगे रिक्रूटमेंट में जाना है। तो रिक्रूटमेंट में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो चीज क्या मालूम चल गई आपको अभी तक कितने लोगों की जरूरत है, किस काम के लिए जरूरत है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिफोर दैट कैन बी डन इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रांसलेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट इनटू स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द डिजायरेबल प्रोफाइल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट, है ना। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जॉब डिस्क्रिप्शन, लिख लो इसको। जॉब डिस्क्रिप्शन इज द description of responsibilities associated with the job, ना। Job description is the description of responsibilities associated with the job and desirable profile of occupants। तो job specification, इसका टेक्निकल वर्ड है job specification, है ना। Are you understanding? Job description is the statement of responsibilities associated with the job। job specification दूसरा टर्म है job specification, है ना, जिसको बोलते हैं प्रोफाइल ऑफ द ऑक्यूपेंट। कैंडिडेट्स प्रोफाइल इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, है ना, नीडेड बाय द कैंडिडेट, है ना। तो क्या द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, दैट इज द पार्ट ऑफ द जॉब स्पेसिफिकेशन। यानी क्या काम करना पड़ेगा वो तो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको करने के लिए कैंडिडेट के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट वी नीड टू डिफाइन, देन ओनली एडवर्टाइजमेंट कैन बी गिवन। आपने देखा कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता तो उसमें दो चीजें होती हैं, पहला लिखा रहता है पोस्ट है, जैसे आपको लिख दिया मैनेजर फाइनेंस, है ना। अब मैनेजर फाइनेंस का नाम सुनते ही क्या समझ में आया कि फाइनेंस का काम देखना है, उसमें लिखा रहेगा क्वालिफिकेशन में सीए और एमबीए फाइनेंस लिखा रहता है कि नहीं उसमें। तो उसका मतलब ये है कि जॉब स्पेसिफिकेशन है, कैंडिडेट के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सो दैट पर्सन कैन बी सुटेबल फॉर दिस पोजीशन, दैट इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन। सो वी हैव टू प्रिपेयर टू स्टेटमेंट्स, वन इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट इज डिफाइनिंग द जॉब, डिफाइनिंग द रिस्पांसिबिलिटीज associated with the job, and job specification or candidate's profile, that is the statement or discussion about the qualification and experience or other personality traits the candidate should have to be selected for this job position। तब जब इसको डिफाइन कर लेंगे तो फिर हम जाएंगे अगले स्टेप पे, वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट नॉट मीन सिलेक्शन, ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन नहीं है, रिक्रूटमेंट इज ओनली एडवर्टाइजमेंट, है ना, इट्स नॉट ए सिलेक्शन। Don't get confused, recruitment is not selection, recruitment only advertising the job, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको। पहले पॉइंट में क्या था आपको, डिटरमिनिंग द एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, मींस क्या पता लगाना है, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्संस नीडेड। कैसे पता लगाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, ठीक है। उससे हमको मालूम चलेगा कितने लोगों की जरूरत है, और जब मालूम चल जाएगा कितने लोग की जरूरत है और किस किस पोस्ट के लिए जरूरत है, तो फिर हमको दो काम और करने पड़ेंगे। एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा कि उस जिस जॉब की वैकेंसी देना उसका काम क्या है, और जॉब स्पेसिफिकेशन है, ऑक्यूपेंट की प्रोफाइल है कि जिस पोस्ट के लिए हम एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, दैट इज टू बी प्रिंटेड इन द एडवर्टाइजमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर इट इन एडवांस। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द रिक्रूटमेंट, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई एम कमिंग बैक, स्टॉपिंग प्रेजेंटिंग एंड कमिंग बैक इन द मीट। ओके साईराम। So only 13 participants are there, very less number, okay। Sairam, anything you wish to ask? Now 12 are there, yes please, anything you wish to ask about this topic? हो सकता है आपसे प्रैक्टिकल करवाऊं मैं इसके ऊपर, ये मैन पावर रिक्वायरमेंट निकालना, मैन वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बन सकता है, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, ओके। सर जो जॉब स्पेसिफिकेशन और जो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, वो सर एस्टिमेटिंग मैन पावर का ही पार्ट है क्या? हाँ, उसका पार्ट है, क्योंकि जब आपने नंबर पता लगा लिया कितने लोगों की जरूरत है ना, और जैसे आपको एक ऑफिस में सारे स्टाफ तो एक से नहीं होते, कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई और किसी सुपरिटेंडेंट है,
तो आपको मालूम चल गया 10 मैनेजर चाहिए। अब मैनेजर में भी वैरायटी हो सकती है, फाइनेंस का मैनेजर चाहिए, एचआर का मैनेजर चाहिए, तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एचआर मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आ रहा है। और फिर आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो एचआर मैनेजर के लिए अप्लाई करेगा वो कौन कर सकता है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप लिखोगे एमबीए एचआर, है ना, या जो भी आपका और दूसरा कोई डिग्री होती है उसमें तो वो लिखोगे। तो ऐसे हमको डिफाइन करना पड़ेगा, तब हम एडवर्टाइजमेंट दे पाएंगे। जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट कैसे देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कैंडिडेट के पास में, है ना। सो दैट इज एसेंशियल नेसेसरी बिफोर गिविंग द रिक्रूटमेंट, गोइंग फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो 4 नए टर्म मिले आपको इसमें, क्या क्या मिले ध्यान रखो। एक तो बताया वर्कलोड एनालिसिस, इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा वर्कफोर्स एनालिसिस, तीसरा है जॉब डिस्क्रिप्शन, और चौथा है जॉब स्पेसिफिकेशन और कैंडिडेट्स प्रोफाइल, ऑक्यूपेंट्स प्रोफाइल। दीज आर द 4 न्यू वर्ड्स इन दिस फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, सो नाउ यू कैन लीव। साईराम। सर आपने कहा इसमें प्रैक्टिकल करवाएंगे सर, तो मतलब कैसा क्या होगा? प्रैक्टिकल मतलब ऐसे ऐसे बताएंगे, अंदाज कर सकते हैं इसका कि कितना जरूरत है हमको। ऐसे कोई डाटा ले लेंगे, सिचुएशन ले लेंगे, उसमें इस कंपनी में इतने लोग हैं और आपको एस्टिमेट करना है कितने लोग की जरूरत है ना। कोई सिचुएशन हो सकती है, इसके ऊपर केस स्टडी हो सकता है कि ये कंपनी है, इसमें इतने लोग हैं ऑलरेडी और इस कंपनी में कितने लोग की जरूरत पड़ेगी आपको आपके हिसाब से, है ना। ठीक है, हाँ जी। सर जैसे कि अगर हमें एम्प्लॉयज चाहिए तो सर वो वर्क फोर्स एनालिसिस होता है, एम्प्लॉयज की जरूरत है तो एम्प्लॉय की जरूरत है तो वर्क फोर्स एनालिसिस होता है सर उसके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्क फोर्स एनालिसिस होता है जो उतने ऑलरेडी हमारे पास है, वो वर्क फोर्स एनालिसिस है। कितने लोग ये पता लगाना है कितने लोग ऑलरेडी आपके पास हैं, है ना। ठीक है, और वर्कलोड एनालिसिस मींस कितने लोगों की जरूरत है टोटल। ठीक, जैसे मुझे मालूम चलता है कि मेरे हमारे स्कूल में हिंदी के 10 क्लास है ना। अब 10 क्लास को पढ़ाने के लिए एक टीचर मान लो कि हमारा 2 क्लास पढ़ा सकता है, तो मालूम चला, मैंने एसेस कर लिया कि हमको 5 हिंदी के टीचर्स की जरूरत है। ठीक, अब मैंने पता लगा कि कितने हिंदी टीचर हैं, तो मालूम चला कि 2 हिंदी, 3 हिंदी टीचर है हमारे पास। तो वर्कलोड एनालिसिस बता रहा है 5 और मैंने एस्टिमेट किया तो वर्क फोर्स में दिखा रहा है 3। इसका मतलब हो गया कि 2 लोग की जरूरत है हिंदी पढ़ाने के लिए। अब हिंदी पढ़ाना अलग अलग कैटेगरी में चाहिए आपको, तो फिर दूसरा पता लगाओ कि किस क्लास में पढ़ाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ाना है, फर्स्ट सेकंड में, थर्ड फोर्थ में, 6 7 8 में, 9 10 11 12 में। तो फिर उसके हिसाब से आप डिफाइन करेंगे, है ना। पोस्ट तो वही हिंदी टीचर की, लेकिन डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। नीचे चाहिए तो पीआरटी लिखोगे, मिडिल में चाहिए तो टीजीटी हिंदी लिखोगे, बड़ी क्लास में चाहिए तो पीजीटी हिंदी, पोस्ट का नाम चेंज हो जाएगा। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी, टीचिंग हिंदी 9th and 10th क्लास और 11th and 12th क्लास और प्राइमरी सेक्शन, तो जॉब को डिफाइन किया। अब फिर जब आप एडवर्टाइजमेंट निकालोगे तो प्राइमरी वाले के लिए सिंपली लिख सकते हो कि शुड बी हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट, है ना, बीए इन हिंदी जो भी होगा, और बीएड या टी जो भी चलता है उसकी क्वालिफिकेशन अलग आ जाएगी। अगर हायर सेकेंडरी के लिए निकालना तो लोगों एमए हिंदी प्लस बीएड, उसकी क्वालिफिकेशन अलग है, दैट इज टू बी डिफाइंड। हमारा एरर। यस सर। सर जैसे कि अगर हमारे पास एक्सेस टीचर सर, एक्सेस तो आपका 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास अलाउ करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल तो बढ़ा सकते हैं उसको, नहीं अलाउ करता तो फिर आपको उसको चलाना पड़ेगा, कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ और काम निकालना पड़ेगा। जब कोई रिटायर होगा तो उसके उसको रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट इज तो सर हटाने के लिए कोई एनालिसिस नहीं है क्या सर? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होती है, किस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, लीगल कंस्ट्रेंट क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट के कौन कौन से रूल्स है उसमें, दैट इज द प्रोसीजर दैट वी हैव टू फॉलो, है ना। आपका जो जॉब एग्रीमेंट हुआ आपके और एम्प्लॉय के बीच में, उसमें क्या कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जॉब क्या दी आपने, दैट डिपेंड्स ऑन दैट, है ना। यस सर। ठीक है, ओके साईराम, आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग।